Assalamualaikum students, I hope you all are doing good and well. Today in this video we are going to study our next topic, and that is properties of substance. So students, you are well known of properties that substance carry. So there are many properties of substance like brittleness, hardness, elasticity, fluidity, liquidity, right? That a substance carry. So let's do this. What will happen if pressure is applied on the substance like chalk, brake, alum? क्या होगा अगर अपन इसको प्रेशर अप्लाई करेंगे ये सब चीज़ों पे, तो दे विल ब्रेक इनटू स्मॉल पीस, राइट? Such substances are said to be brittle, and these brittleness is nothing but the property of substance. Okay, that is an identity of a substance. What is a substance about? Okay, now second one, take an iron nail, try to pierce a cardboard sheet, wet mud and a piece of wood using the nail. What happens? You will notice that nail easily pierces into the wet mud, right? But not the piece of the wood. जो nail है वो mud के अंदर easily pierce हो जाएगा, चले जाएगा, but wood के अंदर वो नहीं जाएगा. It can pierce the cardboard sheet with some efforts. cardboard sheet में भी वो कुछ efforts से जाएगा. Why does this happen? क्यों होता है ऐसा? Because the hardness of a substance, hardness of a wood depends. Okay, the hardness of a substance is determined by how much resistance. ठीक है, the wood has much resistance than compared to cardboard. Okay, how much resistance it offers to the substance being pushed through it, which is the hardest known substance. The hardest known substance is of wood. Okay, now stretch a rubber band and let it go, or apply pressure on a piece of sponge and release it. What would you see? The rubber band and the sponge go back to their original place because they have elasticity. ठीक है, they have elasticity. और उसको हम लोग कॉमन नेम उसको इलास्टिक बोलते हैं ना. इलास्टिक का मतलब क्या होता है? द सब्सटेंस दैट रीगेन देयर शेप, उसको हम क्या बोलेंगे? इलास्टिक्स. उसको क्या बोलेंगे हम? इलास्टिसिटी. एंड दैट प्रॉपर्टी इज नोन एज इलास्टिसिटी. Some substance change their shape when a force is applied on them, but return to their original shape and size when the force is removed. This property is nothing but the elasticity. उसके बाद में take a flat metal sheet of size of a notebook, holding it an angle, put a drop of water, honey and gum at different places on the board. Observe how they flow down the slope. है ना, they will flow down. If you drop a water from above the substance, whatever you are taking, like sheet or slopy substance like sheet paper, book, board, and just drop a liquid of honey or water on it, what will you see? Liquid flow downward on a sloping surface, right? This is the property of fluidity. Fluidity of any liquid is determined by how easily it flows, and how the property is known by flowing. Okay, how much it flows. जैसे वाटर जो है वो जल्दी फ्लो हो जाएगा, और जो लिक्विड है जो जिसकी कंसिस्टेंसी ज़्यादा है, तो लाइक हनी, वो जो फ्लो होगा तो थोड़ा टाइम लेके फ्लो होगा. तो दैट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ अ लिक्विड. दैट इज़ द प्रॉपर्टी इज़ फ्लूइडिटी. ठीक है. If two blocks of the same size, one wood and other of iron, are weighed a balance, how would they compare? अगर एक वेइंग लेंगे आप तराजू, उसके अंदर आप एक वुडन का पीस रखेंगे, एक आयरन का पीस रखेंगे, द मास ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस हैविंग द सेम वॉल्यूम कैन बी डिफरेंट. ओके, उनके जो वॉल्यूम तो रहेंगे, लेकिन उनका जो मास है वो कैसे रहेगा? अलग अलग रहेगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि दिस डिफरेंस इज बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन डेंसिटीज़. उनकी डेंसिटीज़ में डिफरेंस आ जाएगा बिटवीन सब्सटेंस ऑफ द सेम वॉल्यूम. द वन विद ग्रेटर डेंसिटी आर हैवियर देन दोज ऑफ लेसर डेंसिटी. द सब्सटेंस हैविंग लेसर डेंसिटी will come down, while the substance having greater density will come down, और the lesser density जो है तो वो क्या हो जाएगा? वो जहाँ का वहीं रहेगा. Between substance of the same volume, the one with greater density are heavier. जिनके पास डेंसिटी ज़्यादा रहेंगी वो कैसे रहेंगे? सब्सटेंस हैवियर रहेंगे, जबकि जिनके पास में डेंसिटी कम रहेंगी वो सब्सटेंस कैसे रहेंगे? लेस रहेंगे. और डेंसिटी इज़ डिटरमाइंड बाय मास और volume that the substance carry. Now take the next page. Take a glass of water, add some salt, fine sand and sugar to it, and try to dissolve them. Repeat this, replacing water with kerosene. What do you observe? दो ग्लास लेने हैं आपको, दोनों में
दोनों में पानी डालना है आपको। एक ग्लास में आपको क्या करना है, एक वाटर वाले ग्लास में आपको सॉल्ट डालना है और दूसरे में आपको कैरोसिन डालना है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, सम सॉलिड सब्सटेंस डिजॉल्व इन पर्टिकुलर लिक्विड। जो सॉलिड सब्सटेंस है वो क्या हो जाएंगे, वो डिजॉल्व हो जाएंगे। इफ़ अ सॉलिड डज नॉट डिजॉल्व इन लिक्विड इट इज़ सेड टू बी इनसॉल्युबल। और ऐसे सॉलिड जो लिक्विड में डिजॉल्व नहीं होंगे उनको क्या बोलेंगे, इनसॉल्युबल बोलेंगे। लाइक सॉल्ट इज सॉल्युबल इन वाटर बट इनसॉल्युबल इन कैरोसिन। 2 ग्लास लेने हैं आपको, एक में क्या डालना है आपको, एक में वाटर डालना है, एक में कैरोसिन डालना है, दोनों में सॉल्ट डालना है, ठीक है। तो जो सॉल्ट है वो वाटर में ईजिली डिजॉल्व हो जाएगा, हैंस इट इज़ सॉल्युबल, राइट। बट सॉल्ट इज़ नॉट ईजिली डिजॉल्व इन kerosene, that why salt in kerosene is insoluble. You know of many beverage made by using water and soluble substance. The property of substance of getting dissolved, the property of substance that is of getting dissolved, it is called its solubility. उसको क्या बोलेंगे, solubility बोलेंगे। when we can look through when we look through a substance and see things on other side, then that substance is said to be ट्रांसपेरेंट। और सब्सटेंस की ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें से हमको आर पार दिखे, मतलब हमको बाहर का भी दिखाई दे और हमको इनसाइड व्यू भी दिखाई दे, तो दोनों साइड की व्यू दिखाई दे, उसको हम क्या बोलेंगे, ट्रांसपेरेंसी। क्या बोलेंगे उसको, प्रॉपर्टी को क्या बोलेंगे हम, ट्रांसपेरेंट। और वो सब्सटेंस के पास, और वो सब्सटेंस को क्या बोलेंगे हम, ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस। ग्लास सम टाइप ऑफ प्लास्टिक, ग्लास भी ट्रांसपेरेंट रहते हैं, प्लास्टिक भी ट्रांसपेरेंट रहते हैं, क्लीन वाटर जो है वो भी ट्रांसपेरेंट रहेगा, एंड एयर इज़ ऑल्सो अ ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस। तो ये सब क्या हो गई, प्रॉपर्टी हो गई, सॉल्युबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, ब्रिटल, फ्लूइडिटी, ये सब क्या है, प्रॉपर्टीज़ हो गई सब्सटेंस की। आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट शोन इन द फिगर 5.14, ये आपको मेटल्स दिखाई देंगे 5.14 में। फ्रॉम विच सब्सटेंस आर दे मेड, और आपको इनको आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन से सब्सटेंस से मेड है। व्हाट आर दीज सब्सटेंस कॉल्ड एज अ ग्रुप, अगर इनको ग्रुप में रखा जाए तो क्या बोलेंगे, मेटल्स। सब्सटेंस लाइक कॉपर, गोल्ड, आयरन, एल्यूमिनियम आर कॉल्ड मेटल्स। मेटल्स are also substance and they are made of copper, gold, iron, aluminium. Metal are found in form of minerals deep inside the earth. हमको मेटल आसपास नहीं दिखाई देंगे, मेटल्स जो है हमको इनसाइड द अर्थ, डीप इनसाइड द अर्थ में दिखाई देंगे। एक पर्टिकुलर प्लेस रहेंगी अर्थ में जहाँ पे मेटल्स की क्वांटिटी, जहाँ पे मेटल आपको दिखाई देंगे। मिनरल्स फ्रॉम द अर्थ क्रस्ट आर प्रोसीड टू ऑब्टेन मेटल। मेटल हमको जैसा का वैसे ही नहीं मिलेगा, हमको मिनरल फॉर्म में मिलेगा, जिसमें से हमको मेटल को एक्सट्रैक्ट करना है बाकी चीज़ों को निकाल के। लेट अस स्टडी सम कॉमन प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स। और इन द नेक्स्ट टॉपिक आई विल गोइंग टू एक्सप्लेन यू द प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स। सो आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को ये समझ में आया होगा, यू विल गेट ऑल माई पॉइंट्स क्लियर। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड